میں شامل کرتے ہیں اہم خبر۔ عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ، شر پسند عناصر کی بڑی قیادت گرفتار۔ آئینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ متحرک، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں امن کی فضا قائم۔ جنوبی پنجاب میں معمول کے مطابق کاروباری سرگرمیاں جاری، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کے دستے چاق و چوب بند۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ، شرپسند عناصر کی بڑی قیادت گرفتار۔ آئینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ متحرک، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں امن کی فضا قائم۔ جنوبی پنجاب میں معمول کے مطابق کاروباری سرگرمیاں جاری، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کے دستے چاق و چوب بند۔ پولیس کے چاق و چوب بند دستے۔ عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ، شرپسند عناصر کی بڑی قیادت گرفتار۔ آئینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ متحرک، ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں امن کی فضا قائم۔ جنوبی پنجاب میں معمول کے مطابق کاروباری سرگرمیاں جاری، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کے دستے چاق و چوب بند۔ ملتان سے مزید تفصیلات جانیں گے شکیل سلطان سے۔ جی شکیل سلطان، بتائیے گا امن و امان کی موجودہ صورتحال پر کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ جی بالکل، حال ہی میں چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد ایک احتجاج کا سلسلہ جاری ہوا، جس کی وجہ سے کاروباری اور تعلیمی سرگرمیاں معطل ہوئیں۔ اس وقت تعلیمی سرگرمیاں تو معطل ہیں، لیکن کاروباری صورتحال کی بات کریں، مارکیٹ کی صورتحال کی بات کریں تو ملتان شہر میں تمام جو کاروباری مراکز ہیں وہ کھل چکے ہیں، ٹرانسپورٹ بھی جاری ہے، پیٹرول پمپس بھی کھول دیے گئے ہیں اور مارکیٹ کی جتنی بھی دکانیں ہیں وہ بھی کھول دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں کو کیا مشکلات تھیں اور اس وقت تمام مارکیٹ کھلی ہے یا نہیں کھلی، دکانداروں سے بھی بات کرتے ہیں، شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ساری مارکیٹ کھل گئی ہے، گاہکوں کا آنے جانے کا سلسلہ ٹھیک ہے؟ جی سر، وہ صبح سے تو ابھی تک کوئی گاہک نکلا نہیں باہر۔ کاروباری حالات صرف 2 دن تو بند رہے ہیں، باقی آج کھولے تو انشاءاللہ اللہ کا خیر کرے کچھ دیکھو، لیکن جو ہے لوگوں میں خوف و ہراس زیادہ ہے، لوگ نکل نہیں رہے باہر، مارکیٹیں کھل گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ خریدار آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم جانتے ہیں۔ تھوڑی سی تنگی ہے، روڈوں پر لوگ نہیں ہیں کیونکہ عمران خان کی وجہ سے جو ہے معاملات ہوئے ہیں ڈسٹرب، اور باقی حکومت کو یہی کہوں گا کہ لوگوں کے بارے میں بھی تھوڑا سوچیں، ہم لوگ باہر نکلیں۔ ایک تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے دکاندار بھی ڈسٹرب ہے اور ہم بھی بہت تنگ ہوئے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے ملک پہ رحم کرے، پاکستان پہ، اور یہی کہوں گا کہ حکومت اور ان کو سب کو مل کے سوچنا چاہیے کہ پاکستانیوں کے لیے بھی کچھ سوچیں، عوام کے لیے بھی سوچیں، سب لوگ بہت پریشان ہیں، باقی اللہ پاک خیر کرے گا۔ اس وقت جو ہے ملتان شہر میں مارکیٹ معمول کے مطابق کاروبار تمام کھل چکے ہیں، لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مارکیٹ معمول کے مطابق کھلی ہیں۔ بہت شکریہ شکیل سلطان کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں، عمران خان کی گرفتاری، جنوبی پنجاب میں ہنگامہ آرائی کے بعد امن و امان کی صورتحال قائم۔ مارکیٹس اور کاروباری مراکز معمول بحال، شہریوں کا انتظامیہ سے امن برقرار رکھنے کی اپیل ہے۔ مزید جانتے ہیں شکیل سلطان سے۔ جی شکیل سلطان، آگاہ کیجیے گا۔ رابطہ شکیل سلطان سے منقطع ہو چکا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری، جنوبی پنجاب میں ہنگامہ آرائی کے بعد امن و امان کی صورتحال قائم ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری اور کارکنان کے احتجاج کا معاملہ، ملتان میں آج تمام معمولات زندگی معمول کے مطابق جاری۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حسن ملک سے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری اور ان کے کارکنان کے احتجاج کی وجہ سے ملک میں کافی زیادہ ہڑتال اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کے ایشوز کا سامنا تھا۔ کل بھی دیکھنے میں آیا کہ جا بجا سڑکوں پر احتجاج ہو رہے تھے، کارکنان باہر نکلے ہوئے تھے، لیکن اگر آج ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو ٹرانسپورٹ کا کیا سلسلہ ہے؟ تو ٹرانسپورٹ ملتان میں معمول کے مطابق جاری ہے اور یہاں سے گاڑیاں بھی روانہ ہو رہی ہیں، مسافروں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ ٹرانسپورٹر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ساری گاڑیاں چل رہی ہیں، راستے کھلے ہیں، مسافر بہت کم ہو گئے ہیں جی، کاروبار بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، راستے جب بند ہوئے نہیں کوئی بھی، ڈیرہ غازی خان بھی کھلا ہے راستہ، بہاولپور بھی سروس جاری ہے۔ کاروبار ڈاؤن ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کاروبار ڈاؤن ہو گیا؟ پی ٹی آئی کی وجہ سے جو حالات ہوئے ہیں، عمران خان کی گرفتاری کی وجہ سے، احتجاج کی وجہ سے، اس لیے جی کاروبار بہت سلو ہو گیا ہمارے۔ کتنی گاڑیاں آپ لوگوں کی پہلے چلتی تھیں، اب کتنی گاڑیاں چلتی ہیں اور احتجاج کے بعد کیا صورتحال ہے؟ بہت بھائی جان، بہت فرق پڑ گیا ہے، سمجھ آئی نا، کوئی کاروبار ہے نہیں، ہم اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، سمجھ آئی نا، یہ کیا ہے کیا نہیں ہمیں نہیں اس چیز کا پتہ، ہمیں تو اپنی مزدوری سے ہے، ہم صبح سے بیٹھ کے واپس گھر چلے جاتے ہیں، سمجھ آئی نا، اگلے دن راستہ بند تھا، پرسوں راستہ بند تھا، ساری رات ہم دریا میں پھنسے رہ گئے، سمجھ آئی نا، صبح تقریباً 2:30 بجے راستہ کھلا،
समझिए ना, सुबह अजानों के टाइम हम यहाँ मुल्तान पहुँचे हैं। तो भाईजान हमें तो अपनी फिक्र इतनी है कि हमारा चूल्हा कैसे जलेगा। तो अब तो एहतजाज नहीं हो रहा, अब तो कारकुनान भी मुंतशिर हो चुके हैं, क्या अब गाड़ियां आप लोगों की चल रही हैं, अब रास्ते खुले हैं, तो अब कारोबार की क्या सूरत? गाड़ियाँ चल रही हैं, सवारी जो नहीं है फिर क्या करेंगे? गाड़ी खाली कैसे भगाई जाएंगे? तो खाली भगाई जाएंगे जब आदमी कोई होगा नहीं, सवारी नहीं होगी तो फिर कैसे? महंगाई काफ़ी ज़्यादा रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। दूसरी जानिब एहतजाज की वजह से जहाँ पर हम परेशान हैं, वहीं पर मुसाफिर ना होने की वजह से ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में तशद्दुद मुजाहिरे, PTI की आला क़यादत गिरफ्तार, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी भी धर लिए गए। पुलिस ने साबिक वज़ीर ख़ारजा को इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान हाउस से गिरफ्तार किया। PTI ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद और पंजाब में हालिया जलाओ, घेराव और हंगामा आराई के मुकदमात में वाइस चेयरमैन PTI नामजद। मुल्क भर में तशद्दुद मुजाहरे, PTI की आला क़यादत गिरफ्तार, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी धर लिए गए। पुलिस ने साबिक वज़ीर ख़ारजा को इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान हाउस से गिरफ्तार किया। PTI ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद और पंजाब में हालिया जलाओ, घेराव और हंगामा आराई के मुकदमात में वाइस चेयरमैन PTI नामजद कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गिरफ्तार, मुल्तान में डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के डेरे पर मिठाई तकसीम। शेख तारिक ने पंजाब में शरपसंदी की कार्रवाइयों की भरपूर मुज़ाहमत की। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से मिठाइयों की तकसीम का सिलसिला भी जारी है और साथ साथ जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी को बिल आखिर जो है वो एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इस वक्त डिविजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक रुकने कौमी असम्बली शेख तारिक मौजूद से बात करेंगे। शेख साहब, क्या समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी है, अवामी गम और गुस्सा भी मौजूद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कौम ने भला आखिर वो दिन देख लिया कि जो इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था और इस पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो शख्स था, आज वो कानून के गिरफ्त में आ गया। जो शख्स ये कहता था कि ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं, आज अल्लाह ताला की अदालत में वो खुद चोर साबित हो गया। और पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स ने भी ये कह दिया कि ये जो कल जो वक़ुआ हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है और वो वाकई जो है अपना नैब को मतलूब है। तो बात ये है, ये रब का कानून है, ये मकाफात अमल है। जो किसी को कुछ कहता है, जो करता है, वो खुद सबसे बड़ा चोर होता है। और आवाम में कल आप देखें कि लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी हुई थी और लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुतमईन थे कि वो शख्स गिरफ्त में आया है कि जिसने इस मुल्क को तबाही के दाहने तक पहुंचा दिया था। जी बिल्कुल, डिवीजन जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद का कहना है कि इमरान खान बिल आखिर जो है वो कानून के शिकंजे में आ चुके हैं और इमरान खान से जो है वो तमाम जो उनके ऊपर केसेस हैं अब उनके ऊपर उनसे हिसाब लिया जाएगा। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये मुकाबला इमरान खान ने भी अपने दौरे हुकूमत के अंदर केसेस का हिसाब लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी हड़ताल की कॉल के बावजूद तीसरे रोज भी बहावलपुर शहर में बाजार मामूल के मुताबिक खुल गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोयात से। बिल्कुल जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ आज भी हड़ताल की कॉल दी गई है। लेकिन हम बहावलपुर की बात करें, बहावलपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर हड़ताल जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अगर हम शहर के अहम मराकज़ की बात करें, तजारती मराकज़ जिनमें सर्कुलर रोड शामिल है, वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक रवां दवां है। तजारती मराकज़ जो हैं यहाँ पर खुल चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरा मैन अकरम शाहीन को चाहूँ कि वो अगर यहाँ पर सर्कुलर रोड की थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाए तो यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही है। जो तजारती मराकज़ हैं, दुकानें हैं, यहाँ पर खुलती दिखाई दे रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो यहाँ पर शॉप्स हैं वो भी खुलती दिखाई दे रही हैं और कहीं भी जो है मार्केट बंद नहीं की गई। अगर हम शहर के मेन बाज़ारों की बात करें जिनमें शाही बाज़ार शामिल है, रंगीला बाज़ार शामिल है और शहर की जो तारीखी दरवाजे हैं जिनमें फरीद गेट शामिल है, अहमदपुरी गेट शामिल है, वहाँ पर भी जो कारोबार है वो मामूल के मुताबिक जारी है। और आप मेरे जगह में देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मामूल के मुताबिक यहाँ पर जारी है और शहर में कहीं भी हड़ताल नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। कल हमारी ट्रांसपोर्टर से बात हुई, उनका कहना था कि बहावलपुर शहर
शहर से जो बड़े शहर हैं उनको जाने वाली ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर मुअत्तल है, लेकिन आज हमारी उनसे बात हुई, उनका यही कहना था कि बहावलपुर शहर से अब बड़े शहर को जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो भी खोल दी गई है, बहाल हो गई है, जबकि जो मज़ाफ़ाती इलाकों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट है वो मामूल के मुताबिक जारी हो सारी है। इसके साथ बहावलपुर शहर के अंदर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो मामूल से थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि आज कॉलेजेस और स्कूल जो हैं उनको छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, जिसकी वजह से जो सड़कों पर रश है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ अगर हम सबकी बात करें तो वो भी ट्रैफिक रश कम दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया ताहिर जोई आपका हमें अपडेट करने के लिए। कोटादू में भी मामूल के मुताबिक दुकानें खुली हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शफकत मौलाना से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटदू प्रेस क्लब थाना चौक के बाहर मेन जीटी रोड पर मौजूद हूँ। मुल्की हालात के पेश नज़र बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोटदू के जो हालात हैं वो बहुत बेहतर हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई मामला खराब नहीं हुए, तोड़ फोड़ नहीं हुई। यहाँ से जो PTI के अरकान हैं वो इस वक्त रुपोश हो चुके हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि दुकानें खुली हुई हैं, ट्रांसपोर्ट चल रही है, मामला बेहतर है। मजीद इनसे जानते हैं कि मामला और हालात के मुतालिक इनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपके सामने है, हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सरगर्मियाँ नज़र नहीं आई। और जो यहाँ पे जो PTI के बड़े लीडरान थे वो सारे रुपोश हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में ट्रैफिक भी रवां दवा है। अंजुमन ताजरान और दीगर सब ने जो है ना मुकामी इंतजामिया से ताउन किया हुआ है और मुकम्मल तौर पे अमन यहाँ बहाल है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जी बिल्कुल, ये शहरी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि अंजुमन ताजरान की जानिब से भी इंतजामिया के साथ ताउन किया जा रहा है। मामला दुकानें वगैरह मार्केटें खुली हैं, कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। हमारा शहर अमर का गहवारा है। मजीद ये है कि इंतजामिया की जानिब से कुछ FIR तो दर्ज की गई, जिसमें से 50 अफराद को नामजद और 60 नामालूम के खिलाफ उनमें से FIR दर्ज की गई हैं। बहुत शुक्रिया शफकत मौलाना आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलचनाह पर रोड ब्लॉक करने के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर नवाबजादा मंसूर अहमद खान समेत दीगर शामिल। साबिक MNA जमशेद दस्ती, नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान और बिलाल खान के नाम भी शामिल। मुकदमा SHO थाना जकी रेहान की मदीयत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में नामजद PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तश्कील। अहम खबर दे रहे हैं आपको। मुजफ्फरगढ़ में PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलचना पर रोड ब्लॉक करने कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर माल नवाबजादा मंसूर अहमद खान समेत दीगर शामिल। साबिक MNA जमशेद दस्ती, नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान और बिलाल खान के नाम भी शामिल। मुकदमा SHO सदर थाना की जेर निगरानी रेहान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे ने नामजद PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तश्कील। अब आपको बताएं, सियासी कशीदगी और अमनो अमान की नाजुक सूरत हाल। तीसरे रोज भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 12.5 करोड़ सार्फिन परेशान। इंटरनेट सर्विस बंद होने से समाजी राब्तों की वेबसाइट भी डाउन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत दीगर साइट्स और ऐप्स बंद। शहरी इंटरनेट सर्विस बंद होने से सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। शहरियों की इंटरनेट से वाबस्ता हर किस्म की सरगर्मियां तातुल का शिकार हो गईं। 3 रोज में 1 अरब 60 करोड़ के नुकसान का सामना। टेलीकॉम खदमात से हुकूमती महसूलात में 57 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। मोबाइल इंटरनेट पर मुनहसर ऐप्स बंद होने से इनसे मुंसलिक अफराद की आमदन भी मुतासिर है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। मोबाइल इंटरनेट के हवाले से सियासी कशीदगी और अमन-ओ-अमान की नाजुक सूरत हाल। तीसरे रोज भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 12.5 करोड़ सारिफीन परेशान। इंटरनेट सर्विस बंद होने से समाजी राब्तों की वेबसाइट भी डाउन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत दीगर साइट्स और ऐप्स बंद। शहरी इंटरनेट सर्विस बंद होने से सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। शहरियों की इंटरनेट से वाबस्ता हर किस्म की सरगर्मियां तातिल का शिकार हो गई। 3 रोज में 1 अरब 4 करोड़ से नुकसान का सामना। टेलीकॉम खदमात से हुकूमती मौसलात में 57 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। मोबाइल इंटरनेट पर मुख्तलिफ ऐप्स बंद होने से उनसे मुंसलिक अफराद की आमदन भी मुतासिर है। सियासी हलचल ने डॉलर को नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। एक ही दिन में डॉलर 4 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
इंटर बैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 290 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ था। आपको अपडेट करते चलें, सियासी हलचल ने डॉलर को नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। एक ही दिन में डॉलर 4 रुपए 78 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 295 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 290 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब के 32,000 प्राइमरी 7,000 मिडिल स्कूल मुस्तकिल हेड से महरूम। महकमा तालीम के दावों के बावजूद मुस्तकिल हेड तैनात ना हो सके। पंजाब में 65% स्कूलों में असातिज़ा की भी किल्लत। मज़कूरा स्कूलों में सीनियर स्कूल टीचर ही बतौर इंचार्ज हेड तैनात। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की 1,05,000 असामियाँ खाली। स्कूलों में 24,000 असातिज़ा की भर्तियाँ 1 साल से कटाई का शिकार। पैकेट पंजाब का मुतलका स्कूलों में मुस्तकिल हेड तैनात करने का मुतालबा। सदर पैकेट पंजाब का कहना है कि प्राइमरी स्कूल में ग्रेड 16 के मुस्तकिल हेड लगाए जाएं। एलिमेंट्री स्कूल में ग्रेड 17 के मुस्तकिल हेड लगाए जाएंगे। आपको बताएं, पंजाब के 32,000 प्राइमरी 7,000 मिडिल स्कूल मुस्तकिल हेड से महरूम। महकमा तालीम के दावों के बावजूद मुस्तकिल हेड तैनात ना हो सके। पंजाब में 65% स्कूलों में असातिज़ा की भी किल्लत। मज़कूरा स्कूलों में सीनियर स्कूल टीचर ही बतौर इंचार्ज हेड तैनात। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की 1,05,000 असामियाँ खाली। स्कूलों में 24,000 असातिज़ा की भर्तियाँ 1 साल से खटाई का शिकार। पैकेट पंजाब का मुतलका स्कूलों में मुस्तकिल हेड तैनात करने का मुतालबा। आपको बताएं, मुल्तान में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी। सराफा बाजार के ताजर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं फराज रमज़ान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान सराफा बाज़ार में। मुल्तान सराफा बाज़ार के जो ताजिर हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। आए दिन चोरी और डकैती की मुतादिद वारदातें जो हैं वो रुनुमा होती रहती हैं, जिसमें ताजिरों में खौफ व हरास की लहर दौड़ी हुई है। बात करने के लिए सराफा एसोसिएशन के सदर ख्वाजा असलम हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ख्वाजा साहब, हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन चोरी और डकैती की जो संगीन वारदातें हैं इनमें इजाफा हो रहा है। मुल्तान पुलिस क्या कर रही है, क्या समझते हैं सवाल से, वारदातों को कैसे कंट्रोल किया जाए? मुल्तान पुलिस जनाब अपना थाने में लस्सी पी कर सोई रहती है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ को क्या करना है? हमने इंतज़ामिया आला इंतज़ामिया से बारहा शिकायत की है, उसकी दरख्वास्त भी की है कि हमें पहले सिक्योरिटी मुहैया की जाती थी। सराफा बाज़ार को 3 टाइम 6 आदमी होते थे, 8-8 घंटे की ड्यूटी देते थे और फुल 24 घंटे सराफा बाज़ार की ड्यूटी होती थी। उसमें हमें हमारे अपने सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, हमारे कैमरे भी अपने हैं, हमारा एम्पलीफायर सिस्टम भी है, हमारा जो है अपना डिस्पेंसरी सिस्टम भी अपना ही है। हम किसी से पैसे भी नहीं लेते, अपने ही फंड से अपने सराफा बाज़ार के पैसे इकट्ठे करके वो उसी से उसको सिस्टम को सारा चलाते हैं। हमारे पास जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं ये दिखावे की है। असला है इनके पास, उसमें गोलियां भी हैं, लेकिन उनको हमने खुद भी ऑर्डर किया हुआ है कि आपने गोली चलानी नहीं है। तो हमें इंतज़ामिया से बड़ी पुरज़ोर अपील है कि ये क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है और सराफा बाज़ार को इसकी सख्त से सख्त ज़रूरत है कि तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए सराफा बिरादरी का। तो हमें इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सराफा बाज़ार में ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना चाहिए और इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि उससे मुतालबा है ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया फराज रमज़ान आपका हमें अपडेट करने के लिए। FBI मुल्तान की जानिब से शहरियों के लिए लाखों के इनामात जीतने का मौका। खरीदारी वक्त रसीद लेकर ऑनलाइन पोर्टल पर शनाख्ती कार्ड लाएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ओनाबाद से। जी बिल्कुल, FBR की जानिब से जो शहरी बिल ख़रीदारी के वक्त जो बिल होता है उसे मौसूल करके FBR के ऑनलाइन पोर्टल पर उसे ड्रॉप करके अपने ID कार्ड के साथ वहां पर सेंड करते हैं तो उन्हें इनामी लकी ड्रॉ में शामिल कर लिया जाता है। अब इस लकी ड्रॉ में करोड़ों के इनामात दिए जाते हैं शहरियों को। इसी वाले से हम बात करेंगे तर्जुमान FBR मुल्तान से। लकी ड्रॉ जो है ये हर महीने की 15 तारीख को होती है। इसमें हर वो पाकिस्तानी शहरी इसमें लकी ड्रॉ में शामिल हो सकता है जो कहीं भी जब शॉपिंग करता है तो उन लोगों से शॉपिंग करे जो हमारे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में जो लोग रजिस्टर्ड हैं। जब उनसे वो शॉपिंग करेंगे और उनसे वो पक्की रसीद लेंगे, मीन के इनवाइस होगी, उसके ऊपर उस बिजनेसमैन का नाम होता है, उसके ऊपर उसका GST नंबर होता है और जो अपना वो काटता है बिल बनाता है वो, तो उसके ऊपर GST की कटौती भी होनी चाहिए।
اور وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ منسلک بھی ہوتا ہے بندہ وہ. تو جب وہ پکی رسید اسے وہ لیتا ہے تو وہ اپنے موبائل سے ہی وہ اس کو سینڈ کرتا ہے ہمارے ایف بی آر کی اس لکی ڈرا میں وہ اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے، تو اس میں وہ شامل ہو سکتا ہے. سوال یہ رہا کہ اس میں کون کون شامل ہو سکتا ہے. ہر پاکستانی شامل ہو سکتا ہے، بٹ چونکہ یہ ہماری اپنے ایف بی آر کی یہ اسکیم ہے تو ایف بی آر کے ملازمین اس میں شامل نہیں ہو سکتے. ایف بی آر کے ملازمین سر اس میں فائلر یا نان فائلر کا ہونا ضروری نہیں، ہر پاکستانی شہری اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، کوئی فائلر کا ایشو نہیں ہے اس میں کوئی بھی بندہ جو ایون جو 200 روپے کی 100 روپے کی شاپنگ بھی کرتا ہے نا تو وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. وہ جو لوگ جا کے شاپنگ کریں تو وہ ایک پکی رسید بھی جا کے دکاندار سے ضرور لیں، اور جو دکاندار ایف بی آر سے رجسٹر ہوتے ہیں ساتھ جی ایس ٹی کا ٹیکس بھی بہت مینشن شکریہ عباس آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. لیا کے شہریوں کی امیدیں رنگ لے آئیں. ترقیاتی کاموں پر تیزی سے کام جاری ہے. کالج روڈ کو اثر نو بنانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا. شہریوں نے انتظامیہ کے اس کام کو خوب سراہا. مزید بات کرتے ہیں زاہد سفرات سے. جی زاہد بتائیے گا. جی بالکل جی، لیا میں ترقیاتی کام جو ہے دوبارہ سے شروع کر دیے گئے ہیں. اگر بات کی تو گزشتہ کئی ماہ سے جو رکے ہوئے ترقیاتی کام تھے ان پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. میں سے موجود ہوں کالج روڈ پر. شہر کی مصروف ترین سڑک کالج روڈ ہے جہاں پر مختلف تعلیمی ادارے ہیں. اس ساتھ ساتھ ڈی ایچ ہسپتال دیگر یہاں پر ادارے ہیں اس کی سڑک ہے نامکمل ہونے کی وجہ سے شہری تھے، اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اب سڑک کا کام دوبارہ آغاز کیا گیا ہے تو جس پر شہری جو ہیں آج خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کچھ لوگ موجود ان سے بات بھی کرتے ہیں. کتنی خوشی تھی پئی ہے، کتنے آسانی تھی سڑک بنانا؟ بے حد خوشی تھی پئی ہے. اچھا بالا نالا جیسے ڈسٹرکٹ ہسپتال کالج بال چھوڑا نہ جیسے اتنا مشکلات اور اتنا پریشانی نال گزرن دی کہ بس کچھ آکھ نہیں سکتے. لیکن یہ ٹائم ماشاء اللہ الحمدللہ اسائی انتظامیہ دے ڈپٹی کمشنر صاحب لیا دے مزید جیڑی انتظامیہ ان چیز کو روڈ کو مکمل کروین دی پئی ہے. اسا انہوں نے انتہائی مشکور اور ممنون ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر کرے. ڈپٹی کمشنر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سڑک پر کام کا آغاز کیا. تو سر اسو کتنے مسئلہ تھے سڑک بننے پہ یہ ویلفیئر آف دی پبلک کے مفاد کی خاطر یہ سارا کام ہو رہا ہے. اس میں لوگوں کی مشکلات آمد رفت جو ہے مشکلات تھی وہ بھی دور ہو چکے ہیں. ڈی سی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں. ڈپٹی کمشنر شکریہ بھجن تو سر اسو ریڑی چلا دے وے مشکل حال سے ختم تھئی نازی روڈ بنے تو ہر کسی مشکل حل تھی نہیں ہے. ریڑی والے رکشے والے ہر کسی مشکل حل تھی ہے. آمن وجہ بڑی آسانی ہوتی ہے. ہاں چھوڑا مشکل نہیں ہے آسانی سے ہر کی وہ بھی روڈ کھڑے نال بعد مسئلہ بن گئے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. شہری جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سڑک جو اثر نو جلد از جلد مکمل کیا جائے. سڑک پر کام جو تیز رفتاری سے جاری ہے مطالبہ کیا رہے سڑک جلد سے جلد سڑک کو مکمل کیا جائے. بہت شکریہ زاہد سرفراز آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں بہاولپور ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت کاٹن فصل کی مینجمنٹ مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس میں کپاس کی زیادہ رقبہ پر فصل اگانے کے امور پر بات چیت. کپاس کی بہتر پیداوار کسانوں کو جدید زرعی عوامل سے آگاہ کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ. چیئرمین پاکستان کاٹن جنرل بہاولپور وحید ارشد کی شرکت. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق ڈاکٹر اشفاق نعیم اختر محمد امین کی بھی شرکت. ڈی سی کا کہنا ہے کہ زیادہ رقبہ پر کپاس کاشت کر کے قومی فرائض انجام دیا جائے. کپاس سے ملک کی معیشت مستحکم ہوگی. ڈیرہ غازی خان کو صاف ستھرا بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک. سیکریٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب میں اویسی کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے محمود ظہیر سے. جی بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے پنجاب بھر اور پاکستان بھر میں اچھے ایوارڈ جیتے تو اب سیکریٹری امین اویسی صاحب کے زیر قیادت ڈی جی خان میں بھی اسی طرح کی ایک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی جا رہی ہے اور جو فوری طور پر ڈی جی خان کے جتنے بھی مسائل ہیں خاص طور پر صفائی کے حوالے سے ان کو دور کر سکے. اس حوالے سے ایک میٹنگ لی ہے. سر ذرا بتائیے. دیکھیں یہ ایک کمپنی اسٹیبلش ہوئی تھی 2020 میں لیکن یہ باقی کمپنیاں ویل اسٹیبلش اور ویل مینٹینڈ ہو گئیں. ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ بھی ہے اور ان کے پاس کافی زیادہ اکوپمنٹ ہے. یہ ابھی نوزائیدہ کمپنی ہے. اس کے کچھ مسائل ہیں ایلوکیشن آف ریسورسز کے فنڈز کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ان کے پاس ایچ آر نہیں ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. جنوبی پنجاب بھر پہ آپ کی نظر ہے بہاولپور سمیت صفائی کے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں جی کہ خاص طور پہ ڈی جی خان جو ہمارا لیگ بیہائنڈ کر رہا تھا وہ اب ایٹ پار ہو باقی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر. لگے ہاتھوں بتائیے گا بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کی کارکردگی.
भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को तमाम लोग बड़ी यानी रश की निगाह से देख रहे हैं। ये यहाँ वही बात हो रही थी कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर भावलपुर का बहुत बेहतर है, दूसरा ये है कि उनके पास मशीनरी, इक्विपमेंट, HR काफ़ी ज़्यादा मौजूद है एज़ कम्पेयर टू DG। अभी जो आप पिछले दिनों आपने सफाई मुहिम चलाई थी, उसके हवाले से आपने क्या मुतमईन हैं? बहुत अच्छी रही, भावलपुर शहरी मुतमईन? ये मिनिस्टर साहब की एक 15 रोज़ा सफाई मुहिम थी रमज़ान से पहले। उसमें हमारे मुल्तान ने बाकायदा उसमें अवार्ड विन किया है। हालांकि दैट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड टेरेन, उसमें हमने काफ़ी मेहनत की। मैं खुद जाके रात सुबह उनको चेक किया और अब आप जाके देखें एक विजिबल डिफरेंस है वहाँ पे। मुल्तान जो पहले सफाई में बेहतर नहीं होता था, पहला नंबर जीता उन्होंने। फर्क नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत ज़राई मुशावरती कमेटी का इजलास में किसानों के नुमाइंदों की शिरकत। इजलास में कपास की काश्त को बेहतरीन माहौल की दस्तयाबी के हवाले से जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं आसिम सदीक से। में डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी की सरबराही में एग्रीकल्चर टास्क फोर्स और ज़राई मुशावरती कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर साहब, ये बड़ा अहम इजलास है जिसमें ज़राअत और किसान के नुमाइंदे इसमें शरीक होते हैं, तो क्या फैसला किया? जी, बुनियादी तौर पे आज एक तो हमने किसानों के मसाइल सुने हैं, कपास से रिलेटेड, शुगर केन से रिलेटेड और बाकी जो हमारी सीजनल क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड, और जो कंसर्न रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने हिदायत इशू की हैं। अदरवाइज़ भी आपको पता है कि कॉटन आजकल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। कॉटन की सोइंग का हमें टारगेट मिला है और उसको अचीव करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट सारे मुतहर्रिक हैं। किसानों को हमने मुतहर्रिक किया हुआ है, नंबरदारान को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। तो आज वाली मीटिंग उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि जो गवर्नमेंट ने हमें टास्क दिया है, टारगेट दिया है, वो पूरा भी हो, और वंस दिस टारगेट इज़ अचीव तो फिर हम इसकी पर एकड़ यील्ड के ऊपर मीटिंग्स करेंगे, किसानों को एडवाइजरीज इशू करेंगे, और जहां तक मुमकिन हो सका हम किसानों की हर मुमकिन मदद करेंगे। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से 2 हदायत दी गई हैं कपास की काश्त के हवाले से, उसके हवाले से जो किसानों ने तजावीज़ पेश की गई हैं, जो मुश्किलात के हवाले से उन्होंने आगाही दी है, उसके बारे में आगाही दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका हमें अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में ज़िली इंतजामिया, रेस्क्यूज और मुतल्लिका इदारे मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के लिए तैयार। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास। मज़ीद तफसीलात आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल और इसके साथ साथ तमाम जो कुदरती आफात होते हैं उससे निपटने के हवाले से ज़िली इंतजामिया, रेस्क्यूअर्स और तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इस वक्त तैयार हैं। रहीम यार खान के डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू स्टेशन में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक अहम इजलास हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान हमारे मौजूद, उनसे जानते हैं सर इस मरतबा सैलाब की क्या सूरत हाल नजर आती है? अगर सैलाब आता है तो हमारे जो इंतजामात हैं, जो तैयारियाँ हैं वो किस तरह की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास इसी सिलसिले में हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें सारे मुतल्लिका इदारे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, बल्दिया, हेल्थ, लाइफ स्टॉक, जितने भी ये इदारे, हमारे इरिगेशन, जितने भी इदारे फ्लड में काम, उनकी बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए। सैलाब तो हमारा आपको पता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारे लिए क्रिटिकल होते हैं, लेकिन उसकी तैयारी हम लोग मार्च से शुरू कर देते हैं। पिछले महीने भी इजलास हुआ था, आज भी हुआ। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, इक्विपमेंट रेडी है नहीं रेडी, उसके अलावा के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए मॉक एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसके लिए हमने एक डेट डिसाइड की है कि 18 मई को हम मॉक एक्सरसाइज करेंगे, ताकि सारे डिपार्टमेंट आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल, अहम इजलास था जिसमें इंतजामात का जायजा लिया गया और इसके साथ साथ 18 मई को मॉक एक्सरसाइज भी की जाएगी ताकि फ्लड से निपटने इंतजामात का जायजा लिया गया। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत जमात मुहिम के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। बोर्ड की जानिब से इम्तहानात के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मज़ीद बता रही हैं सुहेरा तारिक।
امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ملتان بورڈ کی جانب سے باقاعدہ اس حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 11 اور 12 مئی کو نہم جماعت کے جو امتحانات ہونے تھے ان کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ فی الحال 12 مئی کو جو آرٹس مضامین کے جو طلبہ طالبات ہیں ان کا آخری پیپر تھا، لیکن اب امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور تاحال ملتان بورڈ کی جانب سے کوئی نئی تاریخ کا جو اعلان ہے وہ نہیں کیا جا سکا، اس لیے بورڈ کی جانب سے طلبہ طالبات کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ امتحانات کی تیاری جو ہے اس کو بھرپور رکھیں۔ امتحانات ہونے سے پہلے جو ہے وہ نئی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے 10 مئی کو جو سائنس مضامین کے جو طلبہ طالبات ہیں ان کا آخری پیپر ہونا تھا، جبکہ آرٹس مضامین کے طلبہ نے 12 مئی کو آخری پیپر دینا تھا ڈیٹ شیٹ کے مطابق، لیکن اب ملکی حالات کے پیش نظر جو ہے وہ چونکہ تعلیمی ادارے بھی بند ہیں، اس لیے طلبہ طالبات کو یہ واضح ہدایات بورڈ کی جانب سے کر دی گئی ہیں کہ وہ امتحانات کے حوالے سے نئی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ ملتان تعلیمی بورڈ کے تحت 1.5 لاکھ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بہت شکریہ سہیرا طارق آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور